are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 3, that is more about Microsoft Publishers 2010. So here in this chapter we are going to study about the Microsoft Publishers 2010 and we are how to insert a picture कि कैसे insert करते हैं उस picture को, that how to open Microsoft Publisher कि कैसे open करते हैं, और इन पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करता है, क्लिप आर्ट्स कैसे इंसर्ट करता है, फोटो एडिटिंग टूल्स क्या क्या होता है, ड्रॉप कैप क्या होता है, वर्ड आर्ट क्या होती है, एंड द लास्ट वीडियो सेविंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ पब्लिकेशन. सो लेट्स बिगिन. Microsoft Publisher is an entry-level desktop publishing application from Microsoft. एक आपका entry-level desktop publishing है एप्लीकेशन है आपके माइक्रोसॉफ्ट का. इट इज अ प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प यू टू क्रिएट पब्लिकेशन. इन्हें किस लिए डिजाइन हुआ? आपको पब्लिकेशंस क्रिएट करने के लिए और डॉक्यूमेंट दैट यू कैन प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट, जिसको आप जिस डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट कर सकते हो और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर इज अ ग्राफिक डिजाइन एप्लीकेशन. ये ग्राफिक डिजाइन एप्लीकेशन है जो एम्फसाइज करता है आपके पेज लेआउट्स पे एंड डिजाइन के rather than text composition, proofing and formatting. It provides easy to use and less expensive publishing options. ये easily use और less publishing के easy to use and less expensive publishing options provide करता है for creative designs. Logos from small businesses when where using others high and applications may not be feasible. Publishers file extension is pub dot. इसका file extension क्या है? pub dot है. In June 15 Microsoft released 14.0 version of the publisher. Microsoft ने release किया था 14.0 version publisher का. Opening Microsoft Publishers 2010. It is a user-friendly application software. ये आपका user-friendly application software है and does not demand prior knowledge. इसको prior knowledge नहीं चाहिए होती about applications or graphic design in general. To open Microsoft Publisher 2010, follow the one step. First, आपको click करना है आपको Start button पे, then click करना है आपको All Programs पे. Then click on Microsoft Office. Then click करना है आपको Microsoft Publisher 2010 पे. The Publisher 2010 will open as shown below. In Microsoft Office 2010, while most of Microsoft Office apps adopted ribbons in their user interface, Publisher retained to its toolbar. Publisher retain गई अपनी toolbar पे and did not adopt ribbons. Ribbons को adopt नहीं करा था until the next version Microsoft Office 2010. Microsoft Office 2010 the ribbons तो उसने adopt नहीं करा था. View of Microsoft Publisher Workspace कैसा view होता है? Publishers 2010 introduces several features to dramatically enhance how you see and work with your publications. ये क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है बहुत सारे फीचर्स जो ड्रामेटिकली एनहेंस करता है जैसे आप देखते हो या वर्क करते हो कम्युनिकेशन से. The updated user interface that includes the ribbon, the backstage and a cleaner workspace. अपडेटेड यूजर इंटरफेस होता है जो इसमें क्या इंक्लूड होता है? रिबन होता है, बैकस्टेज होता है, क्लीनर वर्कस्पेस होता है. दैट मेक्स इट इंट्यूटिव टू डिस्कवर मोर कमांड्स सो यू कैन गेट थिंग्स डन फास्टर. जिससे आप चीज़ों को बहुत जल्दी कर सकते हो. पब्लिशर्स इंक्लूड टेम्पलेट्स फॉर मेनी टाइप्स. पब्लिशर्स में इंक्लूड होते हैं टेम्पलेट्स बहुत सारी टाइप्स के लिए ऑफ कॉमन बिजनेसेस नीड्स सच एज बिजनेस कार्ड, ब्रोशर्स, एडवर्टाइजमेंट्स एंड कैलेंडर्स. Now introducing the ribbon. Introduce हो गया तो ribbon how? When you first start Publisher 2010, जब आप Publisher 2010 को start करोगे आप सरप्राइज हो जाओगे by what you see. कब the menus and toolbars have been replaced with the ribbon. जो menus और toolbars है वो किससे replace हो गए? Ribbon से replace हो गए with the ribbon which help you to quickly find the commands that you need to complete a task. सब quickly find कर सकते हो commands जो आपको किसी टास्क को करने में हेल्प करेगी. Each ribbon is divided into groups of related commands. हर ribbon किसमें divided है? Groups में divided है related commands के. For example, the paragraph group contains commands for alignment. Paragraph group command इसमें क्या होता है? Groups होता है. Commands contains commands for alignment, list, identity and line spacing. I don't know. Ironically, Microsoft Macintosh Business Unit is one of the largest developers. Largest developers है आपका Macintosh software outside at Apple Inc. Now, if your organization has special unique to its business, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशल फीचर है उसके बिजनेस के लिए आप ग्रुप कर सकते हो उसके साथ and their own ribbon tabs. You activate a ribbon by clicking the ribbon. आप एक्टिवेट कर सकते हो रिबन को जस्ट उस पर क्लिक करके सिंगल क्लिक करके टैब नेम पे योर मेन रिबन. सारा के मेन रिबन्स क्या क्या होता है? होम, इंसर्ट, पेज, डिजाइन, मेलिंग, शेड्यूल, व्यू. ये आपके मेन रिबन्स होते हैं. होम क्या होता है? इसमें होता है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट होता है, फॉन्ट्स होता है, इंसर्टिंग कॉमास, एलिमेंट्स, अरेंजिंग एंड अलाइनिंग एलिमेंट्स.
इंसर्ट पे क्या होता है? इंसर्टिंग ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स, एडिंग पेजेस, टेबल्स, पिक्चर्स, शेप्स, क्लिप आर्ट्स एक्सेट्रा। पेज डिजाइन में सेटिंग अप अ पेज, चेंजिंग टेम्पलेट्स, चेंजिंग कलर एंड फॉन्ट्स केस। मेलिंग, क्रिएटिंग मेल्स एंड ईमेल्स मर्जेस। रिव्यू में प्रूफिंग एंड ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट होता है। व्यू में स्विच बिटवीन नॉर्मल और मास्टर पेज, ये स्विच करता है नॉर्मल और मास्टर पेज में एंड सिंगल पेज और टू पेजेस में। स्प्रेड व्यूज, इट गिव्स यू कंट्रोल ओवर शोइंग बाउंड्रीज, आपको कंट्रोल देता है शोइंग बाउंड्रीज पे, गाइड्स पे, रूलर्स पे एंड अदर लेआउट टूल्स पे। जूमिंग द साइज ऑफ योर व्यू ऑफ द पब्लिकेशन एंड मैनेजिंग पब्लिशर विंडो यू हैव ओपन। जूम करता है आपके साइज को जो आपने ओपन कर रखी है विंडो पे। क्लिक द फाइल टैब एंड यू आर इन द बैक स्टेज एंड वन स्टॉप ग्राफिक डेस्टिनेशन फॉर मैनेजिंग योर फाइल्स। यहाँ पे आप अपनी फाइल्स को इजीली मैनेज कर सकते हो। द बैक स्टेज कंसिस्ट द बेसिक कमांड्स, इसमें बेसिक कमांड्स होती है जो अवेलेबल होती है आपके फाइल मेन्यू पे, उसको ओपन करते हो, सेव करते हैं, प्रिंट करते हो प्रोजेक्ट फाइल्स को। यू कैन क्रिएट अ फोल्डर नेम कॉन इन विंडो, आप फोल्डर बना सकते हो कॉन में, मतलब विंडो में। नाउ फोटो एडिटिंग टूल्स। In Publisher 2010, user can now insert a replace photo. User insert कर जाता है अपने replace photos में while preserving the layout of the publication or templates. Before finalizing the layout, you can preview the changes. आप finalize करने से पहले आप preview कर सकते हो changes fan को, zoom कर सकते हो और फिर crop to make it picture perfect. You can also change the color and brightness. आप color और brightness भी change कर सकते हो. Choose from library of picture caption layouts or changes the shapes of photos. All from the publishers. आप फोटोज चेंज कर सकते हो, शेप चेंज कर सकते हो फोटोज की, इन मेनी अदर थिंग्स। यू कैन डू वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस, आप बहुत सारे टाइप के चेंजेस कर सकते हो अपने पिक्चर्स में। दिस मे बी क्रॉपिंग, रिप्लेसिंग पिक्चर्स, यूजिंग पिक्चर प्लेस होल्डर्स एंड एड कैप्शंस। माइक्रोसॉफ्ट यूजेस द कोड नेम फॉर अंडर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट क्या यूज करता है? कोड नेम यूज कर सकता है, और ये करता है किसके लिए? अंडर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के लिए एंड सिस्टम्स के लिए। फॉर इंस्टेंस विंडोज 7 वॉज विने, वो क्या था? विंडोज 7 वॉज विने। नाउ क्रॉपिंग, यू कैन क्रॉप इमेजेस फ्रॉम डिफरेंट शेप्स, आप अपनी इमेजेस को क्रॉप कर सकते हो डिफरेंट शेप्स पे। फॉर एग्जांपल नॉन रेक्टेंगुलर शेप्स, यू एंड कैन रोटेट एंड रिसाइज। जो नॉन रेक्टेंगुलर शेप्स होती है वो रोटेट करती है, रिसाइज करती है एंड प्रीव्यू द इमेजेस विदाउट finalizing the desired size, shape and location. Replacing pictures. You can replace pictures by drag and drop. आप replace कर सकते हो pictures को drag और drop से। Swap two pictures in a single operation. Paste pictures copied outside from publishers into a placeholder in publisher. Using picture placeholder, you can easily maintain placeholders. आप easily maintain कर सकते हो placeholder dimensions को while inserting a picture. For example, pictures either too small, pictures या तो बहुत छोटी होंगी या बहुत बड़ी होंगी for a placeholder or automatically resized. Automatically resized हो जाती है add captions. You can now add captions to your pictures from a gallery of caption designs. आप captions add कर सकते हो जिससे gallery of caption designs से layout and make changes easily. और आप easily changes भी कर सकते हो. Inserting and formatting text box, adding box. Step 1 क्या है? From the home or insert tab, select draw text box. आपको draw text box को select करना है. Step 2, place the cursor on the page. आपको cursor को place करना है page there where you would like to draw a text box. जहाँ पे आप चाहते हो text box draw हो जाए. Step 3, click and drag the cursor across the page to the desired size. आप drag कर सकते हो cursor को page पे desired size पे. The size of the text box can be changed after you have drawn it. Size जो the text box का वो easily change हो जाता है जब उसको आप draw कर लेते हो. Brian Eno is the man behind famous Microsoft. Brian Eno क्या है? Man है जिसके किसके behind? Famous Microsoft Sound के behind. Now step 4, when you let go of the left click on the mouse, जब आप let go करते left click पे mouse पे, you are brought to a format tab. आप कहाँ चले जाते format tab पे, which gives you more options for the text box. जो आपको ज़्यादा options देता है text box से. Step 5 क्या? Type in your text. आपको type करना होता है text. Changing the text box style कैसे change करते हैं? Click on the text box. आपको click करना है text box पे. Click on the drawing tool format tab. आपको drawing tool format tab पे click करना है. In shape style group options, choose from style shape. आप स्टाइल पे शेप चूज कर सकते हो. शेप पे शेप आउटलाइन पे चेंज शेप पे टू चेंज द स्टाइल. स्टेप 4, in arrange group option, choose from wrap text, bring forward, backward, rotate if you want more styles. The favorite food in Microsoft Campus is pizza. Microsoft Campus में favorite food क्या है? Pizza है. Now drop cap.
टॉप कैप एनलार्जेस द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ये क्या करता है, एनलार्ज करता है आपके फर्स्ट लेटर को, आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिफरेंट डिफरेंट लाइंस पर चला जाता है। ये विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप या द फर्स्ट लेटर ऑफ अ पैराग्राफ दैट इज एनलार्ज इज ड्रॉप डाउन 2 or more लाइंस। इसको आप 2 या 3 लाइन में भी ड्रॉप कर सकते हो, 4 में भी ड्रॉप कर सकते हो। एज इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, ड्रॉप कैप इज ऑफन एट द बिगनिंग ऑफ द नॉवेल्स। ये कहाँ पे होता है, ऑफनली आगे नॉवेल्स के बिगनिंग में होता है। आपने देखा होगा ड्रॉप कैप, दिस इज द बिगेस्ट वर्ड इज द ड्रॉप कैप, where the top of the first letter, the top of the first letter का अब word lines up with the top of the first sentence, जो किससे लाइन अप करता है, टॉप ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस से, एंड ड्रॉप्स डाउन टू द 4th और 5th सेंटेंस। कहाँ तक ड्रॉप करता है, 4th या 5th सेंटेंस तक ड्रॉप डाउन करता है, शोन बिलो लाइक दिस। क्रिएटिंग अ टॉप कैप कैसे क्रिएट करते हैं, द वेरी फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टैप ऑन अ टैप और क्लिक द लोकेशन वेयर यू वांट टू क्रिएट द ड्रॉप कैप। आपको टैप करना है, क्लिक करना है उस लोकेशन पे जहाँ पे आप उसको क्रिएट करना चाहते हो। टैप और क्लिक द टेक्स्ट बॉक्स टूल्स फॉर्मेट ऑन द रिबन। आपको टैप या क्लिक करना है टेक्स्ट बॉक्स टूल्स फॉर्मेट पे, रिबन पे, टू डिस्प्ले द टेक्स्ट बॉक्स टूल्स फॉर्मेट टैब। स्टेप 3, टैप और क्लिक द ड्रॉप कैप। आपको टैप करना है, क्लिक करना है ड्रॉप कैप पे, बटन पे, इन टाइपोग्राफिंग ग्रुप्स टू डिस्प्ले द ड्रॉप कैप गैलरी। स्टेप 4, टैप और क्लिक द डिजायर्ड स्टाइल। आपको टैप करना है, क्लिक करना है डिजायर्ड स्टाइल पे। माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज सी देमसेल्फ एज सॉफ्टीज। वो कैसे देखते हैं अपने आप को, सॉफ्टीज की तरह। इंसर्टिंग अ पिक्चर, कैसे इंसर्ट करता है पिक्चर, क्लिक ऑन द होम और इंसर्ट टैब। आपको होम या फिर इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन पिक्चर बटन, फिर आपको पिक्चर बटन पे क्लिक कर देना है। स्टेप 3, द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। जो इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा। लोकेट एंड सेलेक्ट द पिक्चर यू वुड लाइक टू इंसर्ट। आपको लोकेट करना है, सेलेक्ट करना है पिक्चर को जो आप इंसर्ट करना चाहते हो, देन क्लिक इंसर्ट। आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। ब्राउज द लोकेशन ऑफ द पिक्चर यू हैव सेव्ड ऑन योर लोकेशन। आपको ब्राउज करना है लोकेशन, लोकेशन ऑफ द पिक्चर जिसको आपको सेव करनी है, आपको जो आपने सेव करी है अपने कंप्यूटर में। सेलेक्ट द पिक्चर एंड क्लिक इंसर्ट। आपको सेलेक्ट करना है पिक्चर को और इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। Microsoft is among top 5 patent holders in the US. Top 5 patent holder है आपका US में Microsoft. The picture will be added to your publication as shown below. Picture आपकी ऐसे ऐड हो जाएगी आपकी publication में जैसे दिखाया हुआ है। Now clip art. Graphics are designed as defined as pictures, clip art and any image file that you can insert in your publication. कैसे डिजाइन है, clip art की तरह कोई भी image file की तरह जो आप insert कर सकते हैं अपनी publication में। To insert clip art, select the insert tab। आपको insert tab को select करना है, click करना है आपको clip art command पे। Step 3, the clip art window appears on the right side। जो clip art window है वो appear हो जाएगी right side पे आपकी screen के। Use the search tool to search for suitable image। आपको search tool को select करना है, search करने के लिए image को। Type in a keyword in search for box। आप search for box में keywords को type कर सकते हो that are related to image, related आपकी image से related you wish to find। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो। आपको ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है, रिजल्ट शुड बी फिल्ड। जो रिजल्ट शुड बी फील्ड होगा, देन डी सिलेक्ट करना है आपको एंड एनी टाइप ऑफ मीडिया यू डू नॉट विश टू सी। जो आप किस टाइप की मीडिया को जो आप देखना नहीं चाहते उसको आप डिसेलेक्ट कर सकते। स्टेप 4, क्लिक गो टू बिगिन योर सर्च। आपको क्लिक करना है गो पे अपनी सर्च को बिगिन करने के लिए। स्टेप 5, पब्लिशर विल डिस्प्ले पिक्चर्स। पब्लिशर जो होगा डिस्प्ले करेगा आपके पिक्चर्स को। दैट मीड योर सर्च टर्म्स। ब्राउज थ्रू द रिजल्ट्स व्हेन यू फाइंड क्लिप आर्ट। जब आपको क्लिप आर्ट मिल जाएगी तो आपके विश के अकॉर्डिंगली आर्ट यू विश टू यूज, क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट ऑफ थंबनेल। आप क्लिक कर सकते हो क्लिप आर्ट पे थंबनेल के फ्रॉम द क्लिप आर्ट विंडो एज शोन बिलो। Clip art also clip art in the graphic arts is pre-made images used to illustrate any medium। ये pre-made images होता है जो illustrate करने के लिए यूज होता है किसी भी मीडियम को। The clip art will be added to your publication as shown below। या add हो जाएगा आपको publication में जो shown होता है below। What art allows you to add special effects in your publication। ये allow करता है आपको special effects डालने के लिए आपकी publication में। It is a gallery of text styles। ये gallery होता है आपके text style का that help you to create decorative effect, जो किस लिए help करता है आपको decorative effects create करने में, such as curves, shadowed or mirrored, reflected text or make your words appear in certain shapes to your publication। What art adds interest to your publication से आपके interest add करता है आपकी publication में। For example, you can stretch a title। आप stretch कर सकते हैं title को, skew text को, make text fit as a preset shape और apply a gradient fill। आप apply भी कर सकते हैं gradient fill को। You can modify or add to text in an existing word art। आप modify कर सकते हो, add to text कर सकते हो अपने existing word art object में। To insert word art को कैसे insert करते हैं। Step 1, click on insert tab। आपको क्लिक करना है insert tab पे। Step 2, in the text group
Select the word art full down menu. आपको किसको select करना है? word art full down menu को select करना है and click the arrow underneath word art. आपको click करना है arrow को underneath कहाँ पे? word art के underneath जो है arrow उसको click करना है. Step 3 choose one of the available styles on transform style. कोई भी available जो style है transform style है उसको choose करना है. Step 4 type in your text in edit word art text box को type करना अपने text में edit word art text box में. सेलेक्ट करना है अपने फॉन्ट को, फॉन्ट साइज को एंड अप्लाई बोल्ड और इटैलिक ऑन क्लिक ओके. आप अप्लाई कर सकते हो बोल्ड या फिर इटैलिक और ओके पे क्लिक करना है. स्टेप 5 द वर्ड आर्ट अपीयर्स ऑन द पेज एंड यू आर ब्रॉट टू वर्ड आर्ट टूल फॉर्मेट टैब. आपका वर्ड आर्ट आपके पेज पर अपीयर होगा. आपको वर्ड आर्ट फॉर्मेट टूल टैब पे फॉर्मेट टैब पे आएगा. फ्रॉम दिस टैब यू कैन एडिट द टेक्स्ट. यहाँ से आप एडिट कर सकते हो मेरे टेक्स्ट को, स्टाइल को एंड मूव. To delete word art, select the word art object. आपको word अगर आपको delete करना है आपको पहले select करना पड़ेगा word art object को, then आपको press करना है delete पे. Saving, opening and closing a publication. First, saving your publisher file कैसे save करता है? You have to click file. आपको file पे click करना है. Then step 2 click save or save as shown below. आपको save as पे click करना है जैसे आपको shown है. So, step 3 in the save as window navigate to where you would like to save your file. आपको navigate करना है जहाँ पे आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हो. Step 4 type the name of your file in the file name box. आपको ना अपनी फाइल का नेम टाइप करना है अपने फाइल नेम बॉक्स में. As shown below in the given example, we have saved the file with publications. हमने यहाँ पे सेव करी अपनी फाइल को एक पब्लिकेशन के नेम से, पब्लिकेशन टेक्स्ट नेम से. here देन आपको किस पे क्लिक करना है? आपको उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है. नाउ ओपन आप पब्लिकेशन कैसे ओपन करते हैं? स्टेप 1 क्लिक द फाइल टैब इन द रिबन एंड देन क्लिक ओपन एज शोन. आपको फाइल टैब पे क्लिक करना है, वो फाइल टैब पे देन ओपन पे क्लिक करना है. स्टेप 2 में क्या करना है? इन द लेफ्ट पेन ऑफ द ओपन पब्लिकेशन डायलॉग बॉक्स, लेफ्ट पेन जो है ओपन पब्लिकेशन डायलॉग बॉक्स में नेविगेट करना है आपको अपनी लोकेशन ऑफ द पब्लिकेशन. आपको अपनी लोकेशन को नेविगेट करना है. यू वांट टू ओपन जिसको आपको ओपन करना है अपने ओपन डायलॉग बॉक्स पे दैट अपीयर्स एंड क्लिक द ड्राइव. आपको क्लिक करना है राइट योर फोल्डर विद दैट कंटेन्स अ फाइल. इसमें वो फाइल होगी जो आपको चाहिए. स्टेप 3 क्लिक द आइकन फॉर द फाइल. आपको क्लिक करना अपने आइकन को फाइल के लिए दैट यू वांट टू ओपन जिसको आप ओपन करना चाहते हो एंड क्लिक ओपन बटन इन द लोअर राइट कॉर्नर. आपको ओपन बटन पे क्लिक करना है लोअर राइट कॉर्नर पे of the open dialog box. You can also open a publication by the double clicking. आप publication को open कर सकते हो double click करके the icon of the file shown in the open dialog box to open the file publications. To open a recently accessed publication, step 1 click on file tab in the ribbon. आपको file tab पे click करना है. Then step 2 then click the recent buttons. आपको recent buttons पे click करना है. Step 3 click on the name of recently opened file. आपको क्लिक करना है enable recently opened files पे एंड जो अपीयर हो गया फिर लिस्टिंग में इन सेंटर ऑफ द बैकस्टेज. क्लोजिंग और एग्जिटिंग फ्रॉम पब्लिशर कैसे क्लोज करते हैं एग्जिट करते हैं? स्टेप 1 क्लिक ऑन फाइल मेन्यू. आपको फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है. स्टेप 2 क्लिक एग्जिट. आपको एग्जिट पे क्लिक करना है. क्लिक करना है इस क्रॉस साइन पे यहाँ पर राइट कॉर्नर. If a dialog box open, अगर आपका dialog box open होता है asking whether you want to save your changes. If you want to save then click yes. अगर आपको सेव करना आप yes पे क्लिक करो, नहीं तो else आप no पे भी क्लिक कर सकते हो. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a wonderful day.